एवरीवन सो टुडे विल बी डूइंग अर्गोनॉमिक्स। सो अर्गोनॉमिक्स क्या होता है? अर्गोस का मतलब होता है वर्क और नॉमिक्स का मतलब होता है लो। तो अर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन होती है ऐसे लो बनाना टू फिट द जॉब टू द वर्क। तो अर्गोनॉमिक्स में हम कुछ ट्रेनिंग देते हैं जिससे मैन और मशीन की बेस्ट एफिशिएंसी मिल सके। वो ट्रेनिंग किस चीज़ की होती है उसे हम याद रख सकते हैं एक निमोनिक से। निमोनिक इस मेल्ट। मेल्ट में एम 3 बार आएगा, ई 2 बार आएगा एंड देन एल ओ टी। तो एम से क्या क्या आता है? मशीन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेथड ऑफ वर्क। देन ई 2 बार आएगा, ई से क्या क्या आएगा? इक्विपमेंट्स और एनवायरनमेंट। एल से आएगा ले आउट ऑफ द वर्क प्रोसेस और टी से आएगा टूल्स। तो इन सब की डिज़ाइनिंग होती है और इसकी डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है अर्गोनॉमिक्स का? कि मैन और उसके वर्क में बेस्ट म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो पाए जिससे कि ह्यूमन एफिशिएंसी और वेलबींग इम्प्रूव हो। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि अर्गोनॉमिक्स को यूज़ करने से क्या देखा गया है कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैव बीन डिक्रीज्ड and the health and efficiency of the worker has been increased. So that was all about ergonomics. Further diseases in the occupational health will be dealt in the upcoming videos. So let's start with lead poisoning. First of all, we need to know that why is lead used in so many industries. We need to know about its 4 important points, its characteristic. First one is that it has a low boiling point. Second one is that it is malleable, so it is used in formation of many alloys. The third one is that it is non-corrosive, and the fourth one is that it is easily oxidized. So these are 4 points about lead. Then we need to do its source. So दो source होते हैं, industrial source and non-occupational source. In industrial source there are various industries which uses lead, like there is plastic industry, there are batteries, shipbuilding and rubber industry. And in non-occupational source, the major is gasoline, which is used in various automobiles. After that, we need to know the mode of absorption. So first is inhalational, so the fumes can be inhaled. The second is ingestion, so some fumes which remain in the upper respiratory tract can be ingested. And the third is through skin contact. So absorption can occur when some products are used like tetraethyl xylate, so they can be absorbed from the skin. Next topic is distribution in the body. So 90% of the lead is excreted in the feces and the remaining is absorbed in the gut. So from the gut, 90% is absorbed in RBCs, and from RBC it goes to liver and kidney and is further metabolized, and it ends up going in the bone. So in when there is resorption of the bone, this lead will further be removed from the bone and go to soft tissue and do the further damage. So what is the mechanism of lead? It binds with the sulfhydryl group of enzyme and then deactivates the enzyme, used in various like in carbohydrate metabolism and porphyrin metabolism. So it does it damage by damaging the enzyme. After that, what is the clinical picture? So the clinical symptoms depend whether there was toxicity of inorganic lead or organic lead. If it was inorganic lead, it will result in abdominal colicky pain, constipation, then anemia, and apart from it, loss of appetite, blue line on gums, and stippling of RBCs. And if there is organic lead poisoning, it will result in CNS symptoms such as headache, mental confusion, insomnia, delirium, etc. After that, we come to diagnosis. So how do we diagnose? Majorly we diagnose based on history and the symptoms, clinical features. Apart from it, there are laboratory tests. The first one is detection of coproporphyrin in urine. The second one is detection of ALA in urine, which is known as ALAU test. Apart from it, we detect lead in blood and urine, and the last one is basophilic stippling of RBC. After that, we come to preventive measure. So there are 9 preventive measure. The first one is substitution, that wherever lead is being used, it
like the care must be taken to substitute it with another product if possible. Second one is isolation. So wherever lead is being utilized, that space should be isolated as much as possible from the community. Then there should be local exhaust ventilation. Then there is personal protection. So the workers should be protected by like personal protective measures or and the respirators. Then good housekeeping. So wherever lead is being used, all the material should be washed and cleaned as much as possible. Then working atmosphere, that lead concentration should be kept below a certain like permissible level in the working condition. Then we have periodic examination of the worker. So we should check lead levels in the blood and urine and do other diagnostic tests to check the prevalence of lead poisoning. Then we have personal hygiene, so hands of the handlers should be washed. Then we have health education, so workers should be educated on the risk involved and also the personal protective measures. Then how do we manage this condition? First of all, the main thing is early diagnosis of the cases. Then when it is diagnosed, a saline purge is recommended and a chelating agent is given like D-penicillamine. So this was all about lead poisoning. So our next topic is sickness absenteeism. So sickness absenteeism क्या आता है? Like sickness का कोर्स देके अपने काम से लीव लेना. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है बिकॉज इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी और द वर्क and thus it can impact the money repercussions. So India में there are 30 million workforce in the registered factories. तो एक रिसर्च से पता चला था कि जो सिकनेस एब्सेंटिज्म है ये 1950s में अबाउट 10% था एंड ये आज के टाइम पे इट हैज़ इंक्रीज टू अबाउट 15 to 20%. So it has been increased due to several causes. जैसे कि there are economic causes कि अगर sick leave पे the workers are paid, so they will take a sick leave and then do some else कुछ और काम. उसके बाद there are social causes कि the worker is taking leave for like marriages or any function or like going back to the home in the village, etc. Then there are medical causes like 10% is due to occupational accident, and the last one there are non-occupational causes like drug addiction. So what is the prevention? First of all is applying of ergonomics. So ergonomics is discussed in another video. Apart from it, there is good factory management, then good human relations, and the last is adequate pre-placement examination. So this was all about sickness absenteeism. Hello everyone, so we'll be starting with the ESI Act, which is the Employees State Insurance Act 1948. तो इसकी काफ़ी बार अमेंडमेंट हुई है. जो लेटेस्ट अमेंडमेंट थी दैट वाज इन 2019. तो इसमें जो एक मेन चीज़ हमें याद रखनी है वो क्या है कि कैश और मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ सिकनेस, मैटर्निटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी. तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि ये हर एक पावर यूजिंग फैक्ट्रीज़, मतलब नॉन सीजनल फैक्ट्रीज़ और पावर यूजिंग फैक्ट्रीज़ जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये कवर करता है. तो इसमें सब कुछ आता है, शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर एट्सेट्रा. तो इसका इफ़ेक्ट मतलब क्या हुआ था इसके बाद कि 2010 से ये सभी एम्प्लॉयज़ जो कि मैनुअल, क्लरिकल कुछ भी है, अगर उनको 15,000 पर मंथ मिलता है तो उनको कवर करता था. 2016 में इसको 21,000 पर मंथ से इंक्रीज़ कर दिया था. एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आती है ESIC के अंडर, विच इज़ ESI कॉरपोरेशन. तो इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर और वाइस चेयरमैन होता है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. तो
अब और क्या आता है इसमें कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कॉरपोरेशन का, वो होता है डायरेक्टर जनरल, हु इज़ असिस्टेड बाय 4 ऑफिसर्स। उन 4 ऑफिसर्स में आते हैं इंश्योरेंस, मेडिकल, फाइनेंशियल और एक्चुअरी। तो ये हमें याद रखना है। उसके अलावा ये हमें याद रखना है कि इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में होता है, और इसके अलावा इसके काफ़ी रीजनल और सब रीजनल ऑफिसेज होते हैं। तो नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ कितने हैं? 2020 में दे वर 13.24 करोड़। वी कैन रिमेंबर रफली 13 करोड़। और उसके अलावा इस मेडिकल फैसिलिटीज़ किसके थ्रू दी जाती है? देयर आर ईएसआई डिस्पेंसरीज, पैनल क्लिनिक है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, हॉस्पिटल्स है, और हॉस्पिटल एनेक्सेस है विद बेड्स। इसके अलावा वी नीड टू रिमेंबर कि फाइनेंस का कैसे होता है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 3.25% ऑफ टोटल वेज बिल, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 0.75%। उसके अलावा जिन एम्प्लॉयज़ की डेली सैलरीज ₹176 से कम, दे आर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। स्टेट का गवर्नमेंट देती है 1/8 ऑफ द टोटल कॉस्ट, और ESIC देता है 7/8, मतलब 7/8 पार्ट। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो 7 हेडिंग्स के अंडर हम करते हैं। इट इज़ मेडिकल, सिकनेस, मैटर्निटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट, फ्यूनरल एंड रिहेबिलिटेशन। मेडिकल बेनिफिट में क्या क्या आता है कि फुल मेडिकल केयर मिलती है, जिसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन भी आता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सर्विसेज में ओपीडी केयर आता है, और फिर ड्रग्स और ड्रेसिंग की सप्लाई आती है, स्पेशलिस्ट सर्विसेज होती है, देन इन्वेस्टिगेशन होती है पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल। उसके अलावा देर आर डोमिसिलरी सर्विसेज, फिर एएनसी, नेटल एंड पीएनसी सर्विसेज, देन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन और आईपीडी ट्रीटमेंट। तो ओपीडी से आईपीडी तक ड्रग्स देते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, स्पेशलिस्ट सर्विसेज आती है, मेटर्निटी मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी सर्विसेज आती है, इमरजेंसी और एम्बुलेंस सर्विसेज आती है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो ESIC के एक्सपेंस पे स्टेट के बाहर भी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। तो डायरेक्टली ESI हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी के थ्रू मेडिकल केयर मिलती है। उसके अलावा पैनल, मतलब जो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनका एक पैनल होता है, इनडायरेक्टली वहाँ से मिलती है। इनको बोलते हैं इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर। डायरेक्ट पैटर्न में क्या आता है कि अगर कोई एरिया है जहाँ पे 1000 या 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की फैमिली है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सर्विस डिस्पेंसरीज बनाई जाती है, जहाँ पे फुल टाइम मेडिकल और पैरामेडिकल पर्सन होता है। ऑन एन एवरेज ओपीडी, मतलब एक दिन में एक डॉक्टर 80 ओपीडी केस देखता है, और एक दिन में एक होम विजिट करता है। जहाँ पे 750 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो पार्ट टाइम ESI डिस्पेंसरीज होती है उधर। और अगर मतलब बहुत ही स्कैटर्ड पॉपुलेशन है तो मोबाइल डिस्पेंसरीज होती है। तो डायरेक्ट में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो सर्विस डिस्पेंसरीज फुल टाइम, दूसरा पार्ट टाइम डिस्पेंसरीज, एंड तीसरा हम मोबाइल डिस्पेंसरीज। फिर आता है इनडायरेक्ट पैटर्न में, इसको पैनल सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ मतलब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एक डेजिग्नेशन दी जाती है इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर की, तो उनको अपॉइंट किया जाता है, तो उनके थ्रू मेडिकल केयर दी जाती है। उसके बाद है एक टर्म आती है रिस्ट्रिक्टेड मेडिकल केयर, जिसमें आता है सिर्फ आउट पेशेंट केयर। तो जहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे एक्सपेंडेड मेडिकल केयर दी जाती है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी होती है। तो देयर आर 2 टाइप, रिस्ट्रिक्टेड और एक्सपेंड। इसके अलावा और भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे कि डेंचर्स, स्पेक्टिकल्स और हियरिंग एड। उसके अलावा आर्टिफिशियल लिम्स, देन स्पेशल अप्लायंसेस सच एज हर्निया बेल्ट्स, वॉकिंग कैलिपर्स, सर्जिकल बूट्स एट्सेट्रा। कॉस्ट क्या आती है इसकी कि मतलब ये पर कैपिटा कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग।
तो अभी मतलब 2001-2 में इट वाज 905 रुपीज़, और जो एक्सपेंडिचर था बाय 2020 इट वाज ऑलमोस्ट 9000 करोड़। उसके बाद हम आते हैं सिकनेस बेनिफिट पे। तो सिकनेस बेनिफिट में क्या आता है कि अगर कोई एम्प्लॉय सिक हो जाता है तो उसको पीरियोडिक कैश पेमेंट दी जाती है। अगर उसकी जो सिकनेस है उस मतलब उसकी सर्टिफिकेशन हुई है बाय इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर या फिर इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो मैक्सिमम ये 91 डेज तक दी जाती है, मतलब अगर कॉन्टीन्यूस पीरियड के लिए होता है, और 70% ऑफ एवरेज डेली वेज दी जाता है। उसके बाद आता है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। इसमें आता है कि 90 डेज़ के अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म डिसीज़ है तो मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए ये एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है। तो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में 34 डिसीज़ेज़ होते हैं, जिसमें हमें मतलब 2 इयर्स, अगर वो इंश्योर्ड पर्सन 2 इयर्स के लिए एम्प्लॉयड था तो उसको इसके लिए भी मतलब बेनिफिट दिया जाता है। तो 34 डिसीज़ में हम याद रख सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ में 4 इन्फेक्शियस डिजीज़ आते हैं: टीबी, लेप्रोसी, क्रॉनिक एम्पाइमा और एड्स, और कोई भी मैलिग्नेंट डिसीज़। उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस और उसकी कॉम्प्लिकेशन, देन नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह की पैरालिसिस, पार्किंसन डिसीज़, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, कैटरेक्ट एक्सेट्रा। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होते हैं जैसे कि CHF, वी कैन रिमेंबर वन डिसीज़, चेस्ट डिसीज़ में COPD, डाइजेस्टिव में लिवर सिरोसिस, ऑर्थोपेडिक में कोई भी कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर वर्टिब्रल डिसलोकेशन, साइकोसिस में शिज़ोफ्रेनिया, डिमेंशिया, डिप्रेशन। इसके अलावा और भी 3 डिसीज़ होते हैं जैसे कि बोन्स, क्रॉनिक रीनल फेलियर या फिर बर्गर डिसीज़। तो क्या होता है कि इंश्योर्ड पर्सन मतलब जितना भी टाइम वो सिक रहता है, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसमिसल और डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस। तो इसके अलावा क्या है, ये था हमारा एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। इसके अलावा होता है एनहांस सिकनेस बेनिफिट, जिसमें ट्यूबेक्टमी के 14 दिन तक छुट्टी मिलती है और वेसेक्टमी में 7 दिन तक होती है। तो जो अमाउंट है इट इज़ इक्वल टू फुल वेजेस। उसके बाद आता है मैटर्निटी बेनिफिट। तो मैटर्निटी बेनिफिट में आता है कन्फाइनमेंट या मिसकैरेज या फिर सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी या कन्फाइनमेंट या फिर प्रीमेच्योर बर्थ या फिर मिसकैरेज। कन्फाइनमेंट के लिए जो बेनिफिट है वो 26 वीक्स तक मिलता है, मिसकैरेज के लिए 6 वीक्स, और कन्फाइनमेंट से किसी सिकनेस के लिए 30 वीक्स, और फुल वेज मिलता है। और मतलब पहले इट वॉज 5000 रुपीज़ पर कन्फाइनमेंट, नाउ इट इज़ 7500 रुपीज़ पर कन्फाइनमेंट। उसके अलावा वी हैव डिसेबलमेंट बेनिफिट। तो इसमें अगर कोई टेम्प्रेरी या परमानेंट डिसेबलमेंट होती है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी या ऑक्यूपेशनल डिसीज़ की वजह से, तो कैश बेनिफिट और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है। तो जो टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट है उसमें 90% ऑफ वेजेस मिलता है, और परमानेंट में लाइफ पेंशन मिलती है। उसके बाद है कि डिपेंडेंस बेनिफिट। अगर मतलब एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो जो डिपेंडेंट्स है दे आर एलिजिबल फॉर पीरियोडिकल पेमेंट्स। पेंशन दी जाती है एट द रेट ऑफ 90% ऑफ द वेजेस विच इज़ शेयर्ड बाय डिपेंडेंट्स फिक्स रेशियो ऑन मंथली बेसिस। और अगर कोई एलिजिबल सन या डॉटर है तो उसको 18 ईयर मतलब 18 की एज तक बेनिफिट मिलता है, एंड इफ़ द डॉटर मैरिज अर्लियर तो बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। देन फ्यूनरल एक्सपेंसेस, तो 15,000 तक इसका मतलब बेनिफिट मिलता है। रिहेबिलिटेशन में क्या होता है कि अगर अगर मतलब परमानेंट डिसेबलमेंट है या रिटायरमेंट है तो मंथली पेमेंट ऑफ ₹10 पे वो उस पर्सन उसकी फैमिली मेम्बर को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती रहेगी। ये 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, और ये ऑलमोस्ट 309 लाख एम्प्लॉयज़ को मतलब कैटर करता है। फिर एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट है, दे आर
एक्सेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ, मतलब उनको कुछ बेनिफिट्स अलग से नहीं देने पड़ते, जैसे कि वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या फिर मेडिकल अलाउंस। एंड देर ऑल्सो रिवेटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट और हेल्दी वर्कफोर्स मिलती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ESI एक्ट 1948. Okay, so the last topic we will be doing in this video is pneumoconiosis. It is a very important question. It is asked as a long question almost every alternate year. So pneumoconiosis क्या होता है? डस्ट की वजह से कोई भी लंग का डिसीज़ होना. That is as simple as that. अब डस्ट का साइज शुड बी बिटवीन 0.5 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, क्योंकि वो हार्मफुल होता है. क्योंकि अगर इससे ज़्यादा साइज़ है तो वो लंग में आएगा ही नहीं, और इससे कम साइज़ है तो वो एल्वियोलाई से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लंग में कोई इफ़ेक्ट को करेगा नहीं. तो न्यूमोकॉनियोसिस मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं कि वो डस्ट हार्मफुल होगी. एक तो साइज़ हो गया, उसके अलावा पीरियड ऑफ एक्सपोजर होता है, देन फाइननेस, कितना फाइन है, दैट इज़ सेम एज साइज़. फिर एयर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उस मतलब डस्ट में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है. फिर उसके अलावा केमिकल कंपोजिशन क्या है डस्ट की, और वो पर्सन का खुद का हेल्थ स्टेटस कैसा है. तो ये तो हो गया फैक्टर्स. उसके अलावा व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज़ कि मोस्टली जितने भी मतलब न्यूमोकॉनियोसिस ये नोटिफाइबल डिसीज़ होता है और इसका कोई क्योर नहीं होता है, इसलिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो न्यूमोकॉनियोसिस इस ऑफ मतलब इसमें काफ़ी सब पार्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डस्ट. तो इसको हम याद कर सकते हैं निमोनिक से, विच इज़ SABF, साब एफ. एस फॉर सिलिकोसिस, ए से दो चीज़ें हैं, एंथ्राकोसिस और एस्बेस्टोसिस. देन बी से भी दो चीज़ें हैं, बिसिनोसिस और बेगासोसिस. एंड देन एफ से हमारा आता है फार्मर्स लंग. उसके अलावा विल डू लाइक डिजीज़ वाइज. तो सबसे पहले आता है सिलिकोसिस. सिलिकोसिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड मोर्टालिटी. तो सिलिकोसिस नाम से पता चल रहा है कि किस चीज़ की वजह से होता है, सिलिका या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से. उसके अलावा इसका फर्स्ट केस मैसूर में देखा गया था 1947 में. तो कौन सी इंडस्ट्रीज़ में मतलब हमें सिलिकोसिस देखा जाता है, वी कैन रिमेंबर इट बाय PCM. तो जैसे P से आता है पोट्री, C से आता है सेरामिक और M से आता है माइनिंग इंडस्ट्री. तो माइनिंग किसकी, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, लेड एक्सेट्रा. सिलिकोसिस में कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि डिसीज़ की प्रोग्रेशन कैसी होगी या डिसीज़ होगा भी कि नहीं होगा. दे आर सेम एज द फैक्टर्स वी डिस्कस फॉर न्यूमोकॉनियोसिस की केमिकल कंपोजिशन कैसी है एक्सेट्रा. उसके अलावा है कि मतलब जो हैज़ार्ड होगा सिलिकोसिस की वजह से, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सिलिका इन द डस्ट. एंड देन इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना आता है सिलिकोसिस का, इट इज़ फ्यू मंथ्स टू 6 years. एंड देन हाँ, इसकी पैथोलॉजी में क्या आता है कि जो सिलिका के पार्टिकल्स है ये लंग में मैक्रोफाज इंजेस्ट कर लेंगे. इंजेस्ट करके वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे और फिर लिम्फ चैनल को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से बाकी सिम्टम्स आएंगे. तो ये क्या करता है, ये कुछ नोड्यूल्स बना देता है और फाइब्रोसिस करता है, विच इज़ नॉन एज टेंस नोड्यूलर फाइब्रोसिस. और ये इरिवर्सिबल होती है, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, इसलिए हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए. इन सीरियस ऑनसेट होता है, एकदम से हो जाता है. तो अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे, अर्ली सिम्टम्स होते हैं इरिटेंट कफ, ऐसे गले में खराश लगेगी, खांसी आएगी, डिस्निया ऑन एक्सर्शन एंड चेस्ट पेन. तो हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन. एडवांस स्टेजेस में जो हमारे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं उनकी इम्पेयरमेंट हो जाएगी. एक्सरे में हमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस दिखेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोडुलर फाइब्रोसिस हो गई है, तो ऐसे बहुत ही हेज़ी सा लगेगा और ये प्रोग्रेसिव होता है. और जिनको सिलिकोसिस होती है दे आर प्रोन टू ट्यूबरक्यूलोसिस. अगर किसी को TB और सिलिकोसिस साथ में हो रही है तो उसको हम कहते हैं सिलिको ट्यूबरक्यूलोसिस. उसके बाद एज वी ऑलरेडी नो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज़ द मेन स्टे इन दिस. तो उसमें आता है डस्ट कंट्रोल मेजर्स एंड रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वर्कर्स. देन वी नीड टू नो कि सिलिकोसिस इज़ अ नोटिफाइबल डिसीज़. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंथ्राकोसिस. तो एंथ्राकोसिस 2 फेजेस में होता है. पहला है सिंपल
simple pneumoconiosis, and the second one is progressive massive fibrosis. तो सिंपल न्यूमोकॉनियोसिस या एंथ्राकोसिस में क्या होता है, लिटिल वेंटिलेटरी इम्पेयरमेंट होती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और इट मे रिक्वायर 12 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। एंड प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में क्या होता है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिसेबिलिटी हो जाती है एंड इट मे रिजल्ट इन प्री मेच्योर डेथ। उसके बाद वी कम टू कि ये किस में होता है, तो जो एंथ्राकोसिस है ये कोल माइनर्स में होता है एंड ये भी नोटिफाइबल डिसीज़ है अंडर इंडियन माइंस एक्ट एंड इट इज़ अ कंपनसेटेबल डिसीज़ अंडर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट। देन वी कम टू बिसिनोसिस। तो बिसिनोसिस कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से होता है। इसमें क्रॉनिक कफ और प्रोग्रेसिव डिस्निया होता है एंड इट में एंड इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमा। देन वी हैव बेगासोसिस। तो बेगासोसिस शुगर केन डस्ट की वजह से होता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम शुगर केन डस्ट में मतलब ये एक नॉर्म है कि 20% से ज़्यादा मॉइस्चर होना चाहिए एंड वी स्प्रे द डस्ट विद 2% प्रोपियोनिक एसिड। तो ये जो शुगर केन डस्ट है उसमें एक बैक्टीरिया आता है, फंगस होती है विच इज़ थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज, तो उसकी वजह से बेगासोसिस होता है, इसीलिए हम प्रोपियोनिक एसिड से स्प्रे करते हैं। देन इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, ब्रेथलेसनेस, कफ, फीवर एंड हिमोप्टिसिस, एंड लंग्स में हमें मोटलिंग दिखती है एंड बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट होती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में, और अगर अनट्रीटेड रह जाता है इट कैन लीड टू फाइब्रोसिस, एम्फिसीमा एंड ब्रोंकाइटिस। सो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूमोकॉनियोसिस।